अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رؤيا أمي وبشارة عيسى وثمرة دعوة أبي إبراهيم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. الحمدللہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ جمعہ کا دن ہے. سن ہجری 1443 ربیع الاول کا چاند آج ثابت ہو چکا ہے. تو ربیع الاول 1443 کا جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جس مقدس مہینے میں ہوئی، اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے. دو باتیں بقدر متعین ہیں. ربیع الاول کا مہینہ، عام الفیل کا سال. تاریخوں میں البتہ اختلاف ہے. 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول. اس پر ہم تفصیلی بحث پچھلے سال میں کر چکے ہیں. ابھی نئی کتاب نیا عنوان، لیکن بات سیرت کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. ربیع الاول اور ربیع الثانی میں آپ کی سیرت طیبہ بیان کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بولنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جلسوں کے اندر تقریر سننا، یہ سب باعث سعادت ہے اور بہت بڑی نیک بختی کا کام ہے. بلکہ جس ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، آپ سیرت النبی نام کی کتاب پڑھیں گے، مقدمے میں عجیب عجیب مصنفین نے اپنے پر پیش آنے والے حالات بیان فرمائے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، کہ سیرت پر لکھنے پر انتہائی وفور شوق اور جذبہ محبت اور عشق
اور دوسری طرف ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ دو لغت سے پڑھی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، مشہور روایت لقد جاءکم رسول من انفسکم. بس اسی پر آج کی مجلس میں ایک مختصر نقطے کی طرف نشاندہی کرنی ہے. قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالی شانہ کا کلام ہے. 10 قراتوں پر پڑھا گیا ہے، 7 قراتوں پر جمع کیا گیا ہے. وعلی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، یعنی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں مختلف قرات کے سلسلے میں ایک کی صیغت اور دوسرے کو غلط گرداننے میں ایک بھاری اختلاف پیش ہونے پر حضرت عثمان بن عفان نے ایک لغت پر قرآن جمع کر دیا اور اسی کو مصحف عثمانی کہا گیا. لیکن مطلب یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ شیعہ کے باطل عقیدے میں مناقب اہل بیت کے 10 پارے عثمان نے ختم کر دیا، اعوذ باللہ، یہ باطل ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان اور جامع القرآن تھے. یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت میں آقا کے عالی نسب کے سلسلے میں ایک تفصیلی بحث ہے. آج سے عیسوی سن 1450 برس پہلے، آج سے عیسوی سن 1450 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں جناب عبداللہ کے گھر میں بی بی آمینہ کے بطن سے ہوئی. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کا سلسلہ 7000 سال میں پورا ہو گیا. 7000 وٹا 1450، 8450 سال دنیا کو ہو چکے. آج 8450 سال، 7000 سال کے آغاز پر آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آدم سے لے کر آقا تک 7000 سال اور 7000 سال وٹا 1450، 571 عیسوی سن میں عام الفیل یمن کے بادشاہ ابرہا نے فوج سے حملہ کیا تھا ہاتھیوں کی. وہ عیسوی سن 571 تھا اس حساب سے، اور وہی سال آقا کی ولادت باسعادت کا ہے. شاید نہ سمجھ میں آئے. عیسوی سن 571 میں یمن کے بادشاہ ابرہا نے عناد میں، ضد میں، مخالفت میں اپنے یہاں اپنی پبلک کی نشو و نما کے لیے اور کعبہ ہی، مکہ ہی، کعبے کی وجہ سے شاداب آباد ہرا بھرا، اور جہاں ٹورسٹ بہت زیادہ جاتے ہیں وہاں بہت زیادہ کمانے کی راہیں بھی ہوتی ہے. گیسٹ ہاؤس چلتے ہیں، ہوٹل چلتے ہیں، ایمبیسی کو فائدہ ہوتا ہے، اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے. تو یمن کے بادشاہ ابرہا نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی. وہ عیسوی سن 571 تھا، اور آقا کی ولادت باسعادت تمام سیرت کی کتابوں میں عام الفیل کے سال لکھی ہے. عام الفیل کے سال، یعنی میں یوں کہہ کر کے چلتا جاؤں عام الفیل کے سال تو شاید کسی کو بھی پتہ نہ چلے عام الفیل کیا ہوتا ہے. فیل کا معنی عربی میں ہاتھی اور عام کا معنی سال. کیا مطلب؟ ہاتھیوں سے سال کا سن شمار کیا گیا، اس لیے کہ عرب میں ہاتھی ہوتے نہیں تھے.
पहली बात। अरब में क्या होता था, इनका रासुल माल ऊंट, इनके दाएं बाएं पहाड़, इनके ऊपर आसमान और इनके नीचे जमीन। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिहत। अल्लाह खुद बयान फरमाते हैं, मक्का वालों ने देखा तो क्या 4 चीजें देखी थी। ये तो सब पैगंबर की बरकत से पेट्रोल निकल गया और पूरी दुनिया में, वरना वो पहाड़ भांगते ज रहते कयामत तक। अगर नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाज के सरजमीन मुकद्दस के अलावा किसी और जमीन में मबूस होते तो मक्का वाले कयामत तक पहाड़ भांगते रहते, लेकिन कुछ न मिलता। जैसे रेगिस्तान वाले रेतों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, कोहिस्तान वाले पहाड़ों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये अपने पेट्रोल पर नाजा हैं, ये नाज करने का हक उनको नहीं है, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला है। एक बात बयान करना चाहता हूं, सन हिजरी 1443 है, 7वें हजार साल दुनिया को उसकी शुरुआत हो चुकी थी, यानी 6999 साल पूरे हो चुके थे और 7वें हजार साल का आगाज था कि आका की विलादत बासआदत आमुल फील वाले साल में रबीउल अव्वल के महीने में जनाब अब्दुल्ला के मकान पर बीबी आमीना के वतन से अब्दुल मुत्तलिब की तौलियत में आपकी विलादत बासआदत हुई। ईस्वी सन के हिसाब से 2021 माइनस 571 कर डालो तो 1450 साल हो जाएंगे, और 1450 साल वत्ता 7वें हजार साल कर लो तो 8450 साल पहले ये दुनिया की कुल उम्र के हिसाब से, ये दुनिया की कुल उम्र का हिसाब हुआ और आका की विलादत 1450 साल पहले का यह वाकया है। आप जनाब अब्दुल्ला के घर में बीबी आमीना के वतन से मक्का मुकर्रमा में आलम दुनिया में तशरीफ ले आए। आप सबसे आली नस्ब के मालिक हैं और तमाम अंबिया और रुसुल आली नस्ब के मालिक हैं। इस आयत करीमा में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, हजरत अनस की रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को इस तरह पढ़ा, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। आम तौर पर मुसहफ़े उस्मानी में लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, मैं फा पर जबर पढ़ता हूं और फा पर पेश है कुरान में। क्या मतलब? अनफुस ये नफ्स का बहुवचन है और नफ्स का माना जान, और अनफस ये इसमें तब्दील है नफीस से। नफीस का माना उम्दा, अफजल, अशरफ, सबसे ऊंचे में ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने अनफस पढ़ा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन ने अनफस पढ़ा, इमाम ज़ुहरी ने अनफस पढ़ा। आका ये फरमाते हैं, ए कायनात के तमाम तर इंसानों, अल्लाह खुद मेरे बाबत, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत एक बात कुरान में इरशाद फरमाता है, वो ये है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफ, अफजल, आली नसब में हैं और तमाम अंबिया आदम से लेकर के आका तक कभी भी जीना नहीं, निकाह से है। ये बात याद रखो। दुनिया के तमाम मज़ाहिब और उनके देवी देवता और जिनके आगे वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, इनमें और अंबिया में आसमान जमीन का फर्क है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका तक कुल अंबिया में सब निकाही का सिलसिला हुआ, कभी जीना नहीं। अच्छा, माधुरी एतबार से, पीगरी एतबार से, बल्कि बीवियों के एतबार से भी, यानी किसी नबी के निकाह में कभी कोई जीना जानिया औरत नहीं आई। मां बगत इमराअतु नबीय्यिन कत्तु,
किसी नबी की बीवी ने कभी भी इनसे जीना साबित नहीं। हाँ, अलबत्ता पूरी दुनिया में एक लानती कौम है, एक मकजूब अलैहि कौम है जिनको यहूदी कहते हैं, जिन्होंने अपने पैगंबर हजरत ईसा की मां पर जीना की तोहमत लगाई। बाकी पूरी कायनात में यहूदियों के अलावा, पूरी कायनात में यहूदियों के अलावा किसी उम्मत ने अपने पैगंबर की मां पर, और सिलसिलाए मादरी तो अलग है, बल्कि ज़ौजियत में रहने वाली बीवी पर भी कोई उंगली नहीं रख सका। इसी तरह कुरान करीम में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अफीफाए कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाबत मुनाफिकों ने जीना की तोहमत गढ़ी और कुरान उतर गया, लौला इस समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूलु लना अन नतकल्लम बिहादा सुबहानक हादा बहतानुन अज़ीम। ए मेरे सहाबा, जब आयशा के बाबत, जो पैगंबर की बीवी है, तुम मुसलमानों की मां है, पूरी कायनात में सबसे पाक दामन औरत है, जब इनके बाबत तुमने मुनाफिकों की शरारत पर, मुनाफिकों की और यहूदियों की शरारत पर जीना की बात सुनी, तो बरजस्ता यूं क्यों कोई नहीं कहा सुबहान अल्लाह सुबहानक हादा बहतानुन अज़ीम। अल्लाह खुद मुसलमानों को झंझोड़ रहा है। ऐसी नासाइस्ता बात मुसलमानों के बाबत भी सुनो तो फौरन चलती मत कर दो। आज तो किसी मुसलमान के बाबत कोई नासाइस्ता बात सुनते हैं तो कहते पाछो के तो शू कीधु, यानी दूसरी मर्तबा सुनता है और फिर उसको चलता है। आका ने फरमाया कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिमा समिअ। सबसे झूठा इंसान दुनिया में कौन? सबसे झूठा इंसान दुनिया में कौन? जो सुना उसको चलता कर दे, जो सुना उसको चलता कर दे। ये दुनिया में सबसे झूठा इंसान। बिला तहकीक चलाना यह मुनाफिकों की सिफात है। अब कुरान पढ़े सूरह बकरा 2.5 पारी की। यहूदियों में 5 गिरोह थे। एक अहबार और रहबान, इनके बड़े बड़े पोप पादरी जिनको कहते हैं, एक गिरोह ये था अहबार और रहबान। दूसरा गिरोह खाइन उलमा, पैसे लेकर के बदल देने वाले अहकाम, खाइन उलमा। तीसरे मुनाफिकीन यहूद, और चौथे नंबर में आरजू परस्त इंसान, आरजू परस्त इंसान। हम तो अंबिया की औलाद, जन्नत हमारे बाप की, और हमको तो कौन जन्नत में दाखिल करने से मना कर सकता है। सूरह बकरा में इन 5 और 5वां गिरोह अवाम का था, अवामुन्नास का। अजीब, सूरह बकरा में यहूदियों के बाबत अजीब अजीब चीजें कुरान ने बयान की। 5 तबके, 5 गिरोह इनमें थे। इनमें सबसे खतरनाक अहबार और रहबान, जो लोगों को हक बताते ही नहीं थे। खाइन उलमा, जो अल्लाह के हकाम बदल देते थे। मुनाफिकीन यहूद, आरजू परस्त, और 5वें नंबर में यहूदियों की आवाम पब्लिक। किसी भी पैगंबर की बीवी से कभी भी जीना शादी नहीं हुआ। हाँ, यहूदियों ने हजरत मरियम पर तोहमत लगाई तो कुरान उतारा, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रन बिवालिदती। किसी पैगंबर की मां का बयान कुरान में नहीं है। कुर्बान जाए ईसा की मां का बयान मरियम का कुरान में, और ईसा और मरियम जोई थे। ईसा बने मरियम, ईसा बने मरियम, ईसा बने मरियम जगह जगह आएगा। बाकी किसी औरत का नाम कुरान में नहीं। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यूसुफ इब्ने हरान का बेटा माना। अल्लाह ने नफी कर दी कि मरियम के पेट से हव्वा जैसे बगैर मां और बाप के हैं, आदम की माई पसली से, और आदम बगैर मां और बाप के हैं, हव्वा भी बगैर बाप के, हजरत मरियम भी बगैर बाप के हजरत बारी ताला के हुक्म से पैदा हुई है। हजरत ईसा बगैर बाप के मरियम के पेट से पैदा हुए हैं। इसकी वजाहत कुरान ने की। ठीक हजरत ईसा के जमाने के बाद इस उम्मत के यहूद पैदा हुए। इस उम्मत के यहूद और मुनाफिकीन ने
सैयदा पर तोहमत घड़ी तो कुरान उतर गया। एक बात हुई, अंबिया आली नसब के मालिक होते हैं और नबियों का नसब सबसे पाक दामन है। क्या नसब है? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन गालिब, अदनान तक ये सिलसिला है। बुखारी में हदीस की किताब में सबसे बुनियादी बुखारी को मकाम है। अदनान तक सिलसिला नसब महफूज है। हजरत आदम तक 30 या 33 सिलसिले हैं जो तारीख की किताबों में हैं, जिनके बाबत अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफका फैसला यह है कि इनमें नसब लिखने वालों ने बहुत गलतियां की है। अलबत्ता अदनान तक सिलसिला नसब यानी पूरा शजारा महफूज है और अदनान के बाद से लेकर के आदम तक सिलसिला नसब में इख्तिलाफ है। लेकिन ये बात यकीनी है कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में आका की विलादत बासआदत हुई। अब तक दो बातें हुई। 1450 साल पहले रबीउल अव्वल के महीने में आका के विलादत बासआदत मक्के मुकर्रमा में आमुल फील वाले साल में जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तौलियत में हुई। अब दो कौल है, आपके बाप अब्दुल्ला थे कि नहीं। राजी कौल ये है कि उस वक्त मक्के में मदीने से खजूरें बकसरत आती थी और जनाब अब्दुल मुत्तलिब को खजूरों की जरूरत थी, यानी दादा को। तो अपने बेटे यानी आका के बाप अब्दुल्ला को मदीना भेज दिया। खजूर खरीदने गए थे, बस मदीना ही में जनाब अब्दुल्ला का विसाल हो गया, यानी आप पैदाइशी यतीम पैदा हुए। और कुरान भी आपको यतीम कहता है, वह अम्मल यतीम फला तकहर अलम यजिद के यतीमन फआवा। जब कुरान बयान करता है अलम यजिद के यतीमन फआवा, ऐ पैगंबर आप मक्के में यतीम पैदा नहीं हुए थे क्या? हमने आपको मक्के में ठिकाना नहीं दिया? अल्लाह ने एहसान जतलाया ठिकाना दिखाने का, और अल्लाह एहसान जतला सकता है, बाकी अल्लाह के अलावा कोई किसी का किसी पर एहसान नहीं जतला सकता। हाँ, लेकिन काम की खूबी और तारीफ बयान की जाती है। काम की खूबी और तारीफ बयान करनी भी चाहिए। वो आंख ही क्या जो खूबी को न देखे, वो आंख जो हमेशा तीखड़ ही देखती रहे, उसको आंख नहीं कहते हैं। आंख में दो खूबी है, एक अल्लाह के खौफ से रोए और एक भलाइयों को देखे और बुराइयों पर आंख बंद कर दे। ये आंख की खूबी है। हर चीज देखी नहीं जाती है इससे वो देखा जाता है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। लेकिन आजकल इंसानों की आदत है कि एक दूसरे की टाटियां खींची सिस्टम के अंदर आंख से भी देखी हुई बात को वो गलत ताबीर करता है। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है अलम नजअल लहू ऐनैन, ए इंसान मैंने देखने के लिए दो आंखें दी है, व लिसानन व शफतैन, बोलने के लिए 32 दांतों के दरमियान में महफूज जगह में तुझे एक जुबान दी है और उस पर मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते तेरे सामने खुले हैं, हिदायत का भी और गुमराही का भी। हिदायत वाला रास्ता इख्तियार कर, गुमराही वाले रास्ते से तू परहेज कर। आप यतीम पैदा हुए और दूसरे कौल के मुताबिक आप 7 महीने के थे कि आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका। जब आप पेट में थे बीबी अमीना के, तो बीबी अमीना ने ख्वाब देखा, मुझसे एक नूर निकला और बसरा, इनको शुद्ध उर्दू में बुसरा कहते हैं, बुसरा, और शाम के महल्लात जनाब आमीना ने जो वहब बिन अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, आपका सिलसिला नसब मां और बाप से तीसरी पुश्त में एक दादा हो जाता है। तो बीबी अमीना ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब ये था कि एक नूर निकला और मक्के में बैठे बैठे अपने घर में शाम और बसरा रोशन होते हुए इन्होंने देख लिया।
یہ تو جب آپ خواب میں، جب پیٹ میں تھے، جب عورت باپوں کی سلبوں سے، پاکیزہ رحموں سے جب ماں کے رحم کے اندر بچہ قرار پاتا ہے تو عورت کو بچلی آتی ہے، الا ماشاء اللہ شاید 99% 99 تو یہی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ہیڑ کہتے ہیں، الٹی، متلی، جی گھبرانا، بے قراری۔ جب حمل ٹھہر گیا اس کی علامت یہی ہوتی ہے۔ پہلے سونوگرافی نہیں تھی، لیبوریٹری نہیں تھی، پرانی عورتیں اسی سے اندازہ لگاتی تھی کہ اب حمل ٹھہر گیا ہے، اس لیے کہ حمل کے آثار میں سب سے پہلا اثر یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ سسٹم بہت اچھی بھی تھی، اس لیے کہ آج تو اگر لڑکی ہے تو کریٹن کرا دیا جاتا ہے، جیسے میں نے پچھلی جمعہ میں کہا تھا، لڑکی کو زندہ درگور کر دینے والا گناہ، اور مہذب انداز میں ڈاکٹر کر دیتا ہے، پیسے خرچ کر کے بیٹی ہو تو اس کو زمین کے اندر ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ آج بھی مشرکین مکہ کی ذہنیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک انسان کے یہاں 4 بیٹی ہوئی، اب عورت 5ویں مرتبہ جب حاملہ ہوئی تو کہا اگر تو بیٹا جنے گی تو ہم تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا کرنا یہ کہ 5واں بھی بچی ہی آئی ہے۔ اب اس عورت کے ساتھ مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، جو روزے رکھتے تھے، جو صدقہ خیرات کرتے تھے، اس عورت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ ذہنیت والے لوگ آج موجود ہیں، یہ ذہنیت ختم نہیں ہوئی۔ یہودی ذہنیت، عیسائی ذہنیت، جہلاء مشرکین کی ذہنیت آج ختم نہیں ہوئی۔ مردم شماری میں آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگاؤ تو پتا چلے گا کہ بچے گرانے والوں کی تعداد میں مسلمان فہرست میں کتنے ہیں اور غیر مسلم کتنے ہیں، سوچنے کا مقام ہے۔ جناب عبداللہ، آپ یتیم پیدا ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ میں 1450 سال پہلے عیسوی سن کے حساب سے پیدا ہوئے تو دنیا میں عجیب پریورتن آٹومیٹک آ گیا۔ وہ کیا پریورتن آیا؟ فارس کی طرح 1000 سال سے آگ کی پوجا کرتے تھے اور کبھی آگ بجھنے نہیں دی تھی۔ جب آقا تشریف لے آئے، ابھی دنیا میں دونوں ہاتھ زمین پر ہے اور زمین کی طرف جیسے آدمی سجدہ کر رہا ہے، سجدے کسی کیفیت سے بی بی آمینہ کے بطن سے جدا ہوتی ہی آقا نے زمین کا سجدہ کیا ہے، اور پھر یوں انگوش آسمان کی طرف اٹھائی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علماء حکمت نے اور علماء مصلحت نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، یہ پڑھو پتہ چلے گا۔ اشارہ انگلی سے آسمان کی طرف کیا تھا اور دونوں ہاتھ زمین کی طرف آپ نے رکھ دیے تھے، گویا کہ دلالت حال کا یہ سجدہ تھا۔ دوسرا کیا پریورتن آیا؟ کسرا کے 14 کنگرے وہ زمین پر آ کر کے گر گئے۔ باہر آئے ساوا جو کبھی خشک نہیں ہوتا تھا، جیسے لوگ گنگا کی پوجا کرتے ہیں، جمنا کی پوجا کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ جڑ ایک جیون ہے، یعنی ایک زندگی ہے اور وہ بھی قابل پرستش ہے۔ جیسے سورج ایک دیوتا ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے، اسی طرح جڑ یعنی پانی ایک زندگی ہے اور جو چیز زندگی ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ آج لوگ کر رہے ہیں، پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں، اسی لیے گنگا مائی کا پانی دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے پاکیزہ وہ مانتے ہیں، اور ہمارے یہاں سب سے پاکیزہ وہ پانی ہے جو جبریل کا کھودا ہوا اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے پر سیدہ ہاجرہ کے لیے اللہ نے مکہ مکرمہ میں کھودوایا تھا، وہی ایک پاک پانی ہے اور اس کی پوترتا اور اس کی پاکیزگی اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ بحیرہ صحابہ پورا خشک ہو گیا۔ جب آپ بی بی آمینہ کے بطن میں تھے اس وقت خواب میں 2 چیزیں بتا دی تھی کہ بی بی جب تیرے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو اللہ کی پناہ میں دے دینا، یعنی یوں بولنا کہ اس بچے کو میں اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہوں، اور دوسرا
नाम इसका मोहम्मद रख देना। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था, नाम मोहम्मद रख देना और अल्लाह की पनाह में रख देना। अब बीबी आमीना के बतन से जनाब अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब की तौलियत में आपकी विलादत बासआदत हुई। पूरे अरब में अजीब किस्म का शोहरा हो गया कि आज एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके पैदा होते ही पूरा घर रोशन हो गया है और उसका नाम भी पैदाइशी नाम लेकर के आया है। अब पूरे मक्के में चर्चे हो गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बीबी आमिना से पूछा, क्या नाम रखोगी? मालूम यह हुआ कि अगर किसी बच्चे का बाप मौजूद न हो तो दादा मुतवल्ली होता है। इसी तरह शरीयत इस्लाम में अगर बेटी अय्युमा इमरातिन नकाहत, जो उनसे औरत अपने आप का निकाह बगैर वली की इजाजत से कर ले, वह औरत जानिया है। अब इस हदीस की शरह लंबी है। एक है विलायत और एक है कफाअत, दोनों का ख्याल रखना इस्लाम में जरूरी है। अपने मां बाप की विलायत हासिल है, अपने खानदान की कफाअत हासिल है। यहां बीबी आमीना के बतन से जब आका तशरीफ ले आए, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बीबी क्या नाम रखोगी? मालूम यह हुआ कि नाम रखने का हक तो बाप का है, लेकिन बाप मौजूद नहीं है तो दादा मुतवल्ली है। लेकिन मां के एहसासात और मां के जज्बात तो पामाल नहीं किया जाएगा, मां से भी पूछा जाएगा। बात बापों की आदत होती है, वही ऑर्डर चलाता है, इसका ये नाम, इसका ये नाम नहीं, दोनों का मशवरा हो। अलबत्ता फैसला बाप का है और बाप फैसला नहीं, यानी बाप मौजूद नहीं है तो दादा फैसला करेगा। दादा मौजूद नहीं है, चचा फैसला करेगा। चचा मौजूद नहीं है, मामू फैसला करेगा। यानी ये मर चुके हो तो मामू का हक है, भाई का हक है। कैसी इस्लाम की पाकीज़ा नीति ये नाम रखने के बाबत। लेकिन कौन अपनाता है इसको? कौन अपनाता है इसको? ये इस्लाम के नीति नियम समझो मेरे बुजुर्गों। अब तक 3 बातें हुई, आइंदा इंशाअल्लाह आगे देखो। हमें बार बार कहा जाता है, जब जब भी इस मुल्क के भारत में या दुनिया में कहीं भी इलेक्शन आता है तो नफरत का माहौल कायम किया जाता है। गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का फजल है, जो होना था वो सह लिया 2002 में और बर्दाश्त किया। एक खुला आतंक मचवा करके बरसरे इक्तिदार आने वाले लोग अब इसी को यूपी में नाफिज कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। एक के बाद एक माए नाज मुमताज उलमा को जेलों की सलाखों के हवाले किया जा रहा है। मैं आपको एक पति की बात बताता हूं, जरा समझ लो, अपने दिल के नगीने में इसको बसाओ। ये नफरत का माहौल कायम किया जाता है। ये यहूदी लोबी पूरी दुनिया के अंदर शर्र फसाद फैलवाती है। आप और हम यूं समझते हैं कि फुला पार्टी ये कर रही है, इसके अंदर में क्या है हकीकत और दोहरी संचार किसके हाथ में है वो समझना चाहिए। अगर कुरान का स्टडी और मुताला आपके पास हो तो दोहरी संचार पूरी कायनात का इजराइल के हाथ में है। ये तो बेचारा लूचा लूला अमेरिका जो अपने आप को पूरी दुनिया का दादा बताता है, वो ही बेचारा अपाहज माजूर लूला लंगड़ा है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। वरना इन कोहिस्तानियों को 20 साल के तवील जंग के बाद बरसरे इक्तिदार दादा बनकर के रहने वाले को आखिर अपने गोशे में क्यों घुसना पड़ा। लेकिन जो मकर कर रहा है वह आज भी दुनिया के अंदर अपनी चालबाजी और हीले अपनाता है। और मुश्किल यह है कि हिंदुस्तान की इजराइल से जितनी गहरी दोस्ती है वर्ल्ड में किसी की नहीं। मेरी पति की बात है, जरा ध्यान से सुनना जवानों, खाली व्हाट्सएप पर मत पड़े रहो। ये इसकी खींचता है, वो इसकी काटता है, वो इसको बदनाम करता है, गलत है गलत। जरा सोच समझ कर काम लो। चाबी किसके हाथ में है? ताला कहां लगा हुआ है? और ऐसा चाबी उनके हाथ में है कि कायनात के सारे इंसानों के दिमाग में ताले लगा दिए हैं।
اور کوئی احمدآباد جا کر کے یہاں کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے کہہ رہا ہے مر جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. آپ سمجھے بات، مخالفت کہاں ہے؟ سوچ سمجھنے کا مقام ہے. بہت نفرت کی آندھی پھیلی ہے، بڑے بڑے علماء جیلوں کی سلاخوں میں بند ہیں، اور آج بھی جمعہ کا طلوع ہونے والا سورج کتنے علماء کو جیلوں کی سلاخوں میں لے گیا ہے. خطرہ اس بات کا ہے کہ تنظیمیں، ادارے، جمعیتیں، ساماجک کاریہ کر، سیاست کا تو کوئی ویلیوز نہیں رہا ہندوستان میں، کوئی لوبی، کوئی پارٹی نہیں رہی. بہت گہری نظر سے سوچو. ماہرین، خالی نعرے بازیوں کا ٹائم نہیں ہے، فکر عمیق سے، گہری سوچ سے کام لو. نہ معلوم ہم بھی کہاں ہو آئندہ، کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہم ایک بات جب موقع ہے تو سمجھانا چاہتے ہیں. السیاست الاسلامیہ، اسلامی سیاست کا نقطۂ نظر سمجھو. ہمارے لباسوں میں کوئی ہمیں یوں سمجھتا ہے کہ یہ پاگل ہوگا، لیکن ہمارے پاس کچھ اسٹڈی ہے، کچھ مطالعہ ہے. ہم نے کائنات کی چابی پڑھی ہے. عراق کا صدر صدام حسین بھی میں نے پڑھا ہے، لیبیا کا کرنل معمر قذافی بھی میں نے پڑھا ہے، میں نے شیخ اسامہ کو بھی پڑھا ہے. میں نے 20 سال کی کوہستان کی اس قوم کی طویل داستانیں پڑھی ہے. پھر میں کسی نظریے کو آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں. اجتماعی قوت کو مضبوط کرو، اپنی اجتماعی طاقت کو مضبوط کرو، چاہے سماج کے لیول پر. یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعیتیں ہو، جماعتیں ہو. ہمارے یہاں سماج ہے، بہت زبردست خدمت کر رہی ہے. موقع پر چھاتی ٹھوک کر کے، سینہ تان کر کے، ضرورت پڑتی ہے اٹھانے کی تو اٹھا بھی لیتا ہے، اور جو کچھ کر لیتا ہے جسے جو توفیق مل جائے موقع پر. اسلامی جمعیت اور اسلامی اتحاد اور اسلامی طاقت کو سماجی عنوان سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو. کھینچا تانی اپنے اعتبار سے تم راجکارن میں کرتے رہو، لیکن اسلامی اتحاد کو کبھی بھی پارا نہ ہونے دو. اگر مسلم قوم نے اپنی اتحادی طاقت کو صبح قیامت تک باقی رہی اور باقی رکھی تو 20 سال کے بعد جب کوہستان نے امریکہ کے مقابلے کے اندر پتھر والی قوم نے امریکہ کے مقابلے کے اندر فتح حاصل کر لی، انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ ڈنکے کی چوٹ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ زندگی میں سربلندی تو ایمان والوں کی ہوگی. نفرت کا ماحول دیش میں قائم کیا گیا. جب نفرت کا ماحول قائم کیا 2022 تک، نام ان کے لینا بھی ہم تو بے ادبی سمجھتے ہیں. کیا ان کے قارون، فرعون، حامان کے نام اللہ کے گھر میں لے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. قرآن کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں. لیکن اسلامی اتحاد ٹوٹتا ہے. جب اسلامی اتحاد ٹوٹتا ہے تو ان مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں، وہ ہاتھی کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے. کہنا یہ ہے نفرت کے ماحول میں سوچ سمجھ سے کام لینا ہے. ہمارا محکمہ افسران کا سمجھدار ہے، ایک طرفہ فیصلہ نہیں ہے، بصیرت اور عقل سے کام لیتا ہے. ورنہ ایک اجھڑ قوم، ایک اناڑی قوم جن کی کوئی عقل سمجھ سے کوئی واسطہ نہیں، گیل میں آ کر کوئی بھی مذہب تماشے کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب تماشائی کی تعلیم نہیں دیتا. مذہب روح عبادت کا نام ہے، عبادت کی روح تماشے میں نہیں. اس لیے جھنڈیاں پھرکانے کا ہم منع کرتے ہیں. یہ تو تماشا ہے. حقیقت تو جانو کہ جس امینہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، محمد الرسول اللہ کی شان میں ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس ذات کی حیثیت کیا ہے کوئی نہیں سمجھتا. جب روح عبادت یہ مذہب ہے اور مذہبی حیثیت سے اس کو ہٹایا گیا تو قوم تباہ برباد ہوگی. یہ طے شدہ بات ہے. جلسے جلوس کا یہ موقع نہیں، موقع اس بات کا ہے کہ نفرت کے ماحول کو محبت میں پروان دے دو، نفرت کے ماحول کو محبت میں بدل دو. اور نفرت کے ماحول کو محبت میں بدلنے کے لیے مسلمان قوم ہی دنیا میں اسوہ اور نمونہ ہے، باقی کوئی قوم دنیا میں نہیں. کس نے کورونا میں کام کیا ہے؟ ایک کلمہ وحدت والی مسلم قوم
जान की परवाह किए बगैर, वरना यहूदी भी घरों में बैठ चुके थे, वरना इस्राइल भी घर में बैठ चुका था, ईसाई भी घरों में बैठ चुके थे। अरे दूर जाने की जरूरत नहीं, यहां भी गैर मुस्लिमों को उनके शमशान तक पहुंचाने में किसी जवान मुसलमान का किरदार रहा है। इसको कहते हैं मोहब्बत का सबक। जो नफरत का माहौल कायम किया जाता है, इसको मोहब्बत में बदल दो। जब नफरत के माहौल में मोहब्बत की शमा रोशन करेंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर हमारा कोई उंगली नहीं करेगा। लोग बाहर ही बाहर से बातें फेंकते हैं, अंदर आने की कोशिश नहीं करते। ये मौका हुआ, सुलझ गया, उलझ गया था, अल्लाह ने उसको सुलझा दिया। लेकिन कल मैंने जो उनकी कौम के समझदारों का मजमून पढ़ा तो मेरी आंख में से आंसू निकल गया। हाय हाय, हमने तो अपने मजहब के लिए कोई कोशिश और मेहनत नहीं की। इनके मजहब का बड़ा इंसान लिखता है कि धर्म और धार्मिक विधि और पूजा और इबादत और पूज धार्मिक विधि के अंदाज में होती है। ये किसी कौम या किसी मजहब या किसी इंसान की दिल आजारी के लिए नहीं होती। उनसे माफी मांगो। और हुकूमत को भी कहा है, इस किस्म के गुनाहों में जो मुलव्वस हैं इनको सख्त और कड़ी सजा करो। और उन्होंने अपने मजहब को समझाया कि हमारा मजहब ये है और इस मजहब के अंदर ये तालीम है अपने एतबार से, लेकिन इस मजहब की तालीम में कहीं नफरत नहीं है, कहीं दुश्मनी नहीं है, कहीं किसी को आदर और तकलीफ पहुंचाना नहीं है। तो मुझे एक एहसास हो गया कि समझदार तबका इनमें भी है जो क्या समझता है हालात और जज्बात। हम जज्बात में आकर के, हालात में आकर, स्टाइल में आकर इंसान एक दूसरे इंसान को एक दूसरे इंसान के खिलाफ या समाज के खिलाफ या कौम के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ जब उभारता है और उकसाता है तो नतीजा क्या होता है? वो जवानों के लाशों के ढेर चले जाते हैं और इंसान को फिर अफसोस के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहता। मैं एक मशवरा मेरा देता हूं, जब भी किसी कौम का कोई मजहबी त्योहार हो, हम क्यों उनको देखें? जब गणेश विसर्जन होता है तो दो तरफा लाइनों में मुसलमान खड़े हो जाते हैं, अल्लाह अकबर। क्या ये देखने के काबिल चीज है? मैंने अभी कहा यह आंख इसको देखने के लिए नहीं है। जूनागढ़ में एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे, मोहल्ले में एक घर तौहीद परस्त था, बाकी बेचारे गलत अकाइद वाले। तो ताजियादारी होती थी मुहर्रम में, 10 दिन अपने घर में रहता था और 10 दिन जमात के साथ नमाज भी घर में, या अगर जाना होता तो गली बदल करके जाता था। और अगर खुदा न खास्ता बाई चांस वहां से निकलना पड़ा तो औरत की तरह चेहरे पर पर्दा डाल देता था। तो सिक्का पड़ता था, सिक्का। यही मीनारा मस्जिद के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी, हिंदू की भी, कि वो जब उनका कोई त्योहार या कोई चीज निकले तो ढोल बजावे। लेकिन आज तो मुसलमान जितने गायन जोर जोर से बजा रहा है, बल्कि मस्जिद में भी वो रिंगटोन ऐसी लेकर के आता है, इसको बंद करने की भी तस्दीक नहीं लेता। और जवानों को तो ऐसा देखा कि माशा अल्लाह उस दज्जाल को सज्जे की जगह पर रख करके नमाज पढ़ता है। तो रूही इबादत कहां रही, भूल कहां है? मेरे बाबत चाहे लोग कैसी ही बातें करें, लेकिन हमारी अपनी भूल, हम किसी के मजहबी चीजों को, हम ये नहीं कहते इस वाक्य में हमने देखा है, इस पर मैं नहीं कह रहा हूं, हमेशा के लिए बस अपने मजहबी चीज अपने तौर तरीक पर वो करते रहे, हम अपनी रूही इबादत में मसरूफ रहे। ये नफरत का अभी 1-2 साल के लिए अपने नापाक मंसूब और नापाक अजाइम को पूरा करने के लिए जो इस मुल्क में इंतहाई खतरनाक वगर कारण का राजकारण खेला जा रहा है, वगर कारण का राजकारण खेला जा रहा है। हम कहीं भी अपने आप को अपनी जात से, अपने खानदान से, अपने मुताल्लिकिन से, अपनी कौम से, बल्कि इस मुल्क से और हर हजर शजर हर कायनात के मखलूक के साथ अमन व अमान रहे, चैन सुकून रहे। चाहे कितना ही कोई नफरत का माहौल कायम करे, जब तक हम उसको मोहब्बत के साथ ही बदल देंगे तो नफरत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती है। जो कुछ होता है या हुआ है, हम सदमा भी है दिल में, अफसोस भी है,
काम करने वाली जमात अगर जेलों के सलाखों की नजर हो गई तो फिर उम्मत बगैर रहबर के क्या काम करेगी, उम्मत बगैर रहबर के कैसे मार्गदर्शन हासिल करेगी। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि नफरत की आंधी और तूफान में बहने के बजाय मोहब्बत का सरचश्मा और मोहब्बत की शमा रोशन करने का काम करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, शाइर इस्लाम की हिफाजत फरमाए। हमारे अभी अभी माजी करीब में पार्लियामेंट के मेंबर थे हजरत मौलाना असरारुल हक साहब, अल्लाह ताला ने इनसे बहुत काम लिए, बहुत काम लिए, बहुत सादा तबीयत के। जब पार्लियामेंट में जाते थे तो भी इसी तरह अपने जुब्बा लेंगा अपनी या अपना कमीज जुब्बा और अपनी वही तेहबंद, बहुत सादगी और वकार के साथ अल्लाह ने हर एतबार से उनसे काम लिए, मुल्क के एतबार से, समाज के एतबार से, सियासत के एतबार से, मजहबी एतबार से, मदारिस के एतबार से। लेकिन वो जवार रहमत खुदाबंदी में चले गए। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उनके मुताल्लिकीन पर आयद है। वहां से हर साल मौलाना तशरीफ लाते हैं, इस साल भी आए हैं। मस्जिद, मदरसा, खानका, समाजी सियासी कामों के लिए बड़ी रकम वो इस्तेमाल करते हैं। नमाज से फरागत के बाद मदरसे के लिए ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से ताआवुन फरमाते जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत फरमा ली है और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में है हम, और पुलिस अपना काम अपने एतबार से कर रही है। इतने बड़े हादसे में वो रात को 4 बजे तक बेदार रह करके असल सुराग तक पहुंच जावे और शरारत कहां से हुई है वो गाड़ी भी गिरफ्तार करके अपने कब्जे में ले ले और वो कसूरवारों के ऊपर जब कब्जा करके कानूनी कार्रवाई कर ले, ये हमारे लिए अमन और अमान की एक दलील है, एक रोशन मीनार है। हम भी ये कोशिश करें कि हम अपने मजहबी जितने भी त्योहार हैं या मजहबी चीजें हैं उसको रूह इबादत बनावे और दूसरों को अपने अपने तर्ज पर वो करते रहें। हमारा कोई डिस्टर्ब उनमें न हो तो उनका भी कोई डिस्टर्ब हमें नहीं होगा। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल परेशान हाल इंसानों की परेशानी को खत्म फरमावे, मुल्क की हिफाजत फरमाए। खुसूसन यूपी के सूबे को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और मुसलमानों को और वहां से पूरी दुनिया में काम करते हुए हमारी तंजीमों की अल्लाह ताला भरपूर हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाल अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या दल कुव्वतिल मतीन। ऐ अल्लाह हम तमाम कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपके मारिफत का नूर अता फरमा, आपके ज़ात आली से ताल्लुक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा, शाइर इस्लाम की हिफाजत फरमा, काम करने वाले अफराद, जमातें, जमईयतें, तंजीमें, समाज, इदारे, इनकी भरपूर नुसरत फरमा, मदद फरमा, हिफाजत फरमा। हर शरीर की शरारत, हर फितिन का फितना, हर रखना अंदाज की रखना अंदाजी, हर अगराज परस्त की गर्जें जो वाबस्ता होती है, शाइर इस्लाम की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह एक नफरत का माहौल दीदा व दानिश्ता हमारे मुल्क में पैदा कर दिया गया है। महंगाई अल्लाह जवाब दे रही है, हर फर्द उम्मत परेशान परेशान है। गुंडागर्दी, कत्ल गारतगिरी, कत्ल कुश्त, खून की नदियां बह रही है। हमारे माहिरीन, काम करने वाले नब्बाज अलमा जेलों की सलाखों में बंद है। ऐ अल्लाह, जो आलम पर निगाह रखते थे वो काल कोटड़ी में जमा हो गए। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हालात को बेहतर जानता है। एक इंसान बिल्कुल सीधा सादी तबीयत का, जिसके हाथ में 25,000 आदमी गैर मुस्लिम कलमा पड़े हो और इस्लाम की मेहनत में जिसने जिंदगी लगा दी हो, आज वो जेल की सलाखों में बंद है। ये भी तेरा फैसला है। उनके शागिर्द, उनके असातिज़ा, उनका मदरसा, घर को छापा मारा, परेशान किया। एक मुखलिस, एक हमदर्द, न सियासत से कोई लेना देना, न कोई बहुत उधर उधर का मसला, बस एक तबलीग इस्लाम में जिंदगी गुजारी। अल्लाह जेलों की सलाखों में बंद। रब्बा, न मालूम
आने वाले दिन कौन से खतरात और कौन से खदशात लेकर के आएगा। हर फर्द उम्मत की हिफाजत फरमा ले। जो दिलों की सलाखों में बंद है, आय अल्लाह जल्द रहाई की शक्ल पैदा फरमा दे। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी महा साथियों और जमात के और उनके अहदाफ और अगराद और मकासिद के साथ पूरी आज़ादी फरमा दे। अल्लाह जल्द अज जल्द रहाई की शक्ल पैदा फरमा दे। आइंदा किसी भी फर्द उम्मत को आजमाइश का शिकार बनने से बचा ले। हमारी अवाम को, हमारे खवास को, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी मर्दों को, हमारी औरतों को, अल्लाह हमारी बहू बेटियों को, अल्लाह इनकी भरपूर किसी का तख्ता मश्क बनने से बचा ले। अल्लाह हम तौबा करते हैं, यकीनन भूल तो हमारी है। ऐ मेरे परवरदिगार हमारी तौबा कबूल फरमा। इस मुल्क में आपने इत्तेहाद इत्तिफाक दिया है, बाहम अमन व सलामती दी है, बाहम मोहब्बतें अता फरमाई हैं। अल्लाह यहाँ नफरत को अल्लाह फरोग न दे, अल्लाह यहाँ नफरत को अल्लाह फलने फूलने न दे, यहाँ मोहब्बत ही को अल्लाह उसकी शमा रोशन फरमा दे। अल्लाह हमारी नस्लों की दीन ईमान की हिफाजत फरमा। इस मुल्क की महंगाई को खत्म फरमा, इस मुल्क से जुल्म को खत्म फरमा, इस मुल्क से बदअमनी को खत्म फरमा, इस मुल्क से निर्दोष बेकसूर मुसलमान और कायनात के तमाम अफराद की खून बहाने से हिफाजत फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार मसाजिद की, मदारिस की, दावत के काम की, जमातों की, जमीयतों की, खानकाहों की, मदरसों की अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमा, नुसरत फरमा, मदद फरमा। जो लोग काफी सालों से जेलों में है, परेशान है, खतरनाक हालात में है, तू ही बेहतर जानता है कितने निर्दोष मर्द भी है, कितने निर्दोष औरतें भी है, कितने बच्चे भी है। ऐ हमारे परवरदिगार, ओ सुन्नत यूसुफ की जेलों की सलाखों में जिंदा कर रहे हैं। मुसलमान जहां भी जाता है, ए रब तू साथ में होता है। हमारे परवरदिगार, औरों को तो माबूद तलाश करना पड़ता है, तो हमारे साथ ही होता है। जहां कहीं भी है तुझ पर ईमान लाने वाले जिस तंगी और जिस जीक और जिस परेशानी के शिकार है, तेरे अलावा कौन है जो उस तकलीफ को दूर करे? तेरे अलावा कौन है जो उस मुसीबत को समझ सके? वो तो मुब्तला ही समझ सकते हैं। हम बाहर रहकर मुजाहरे कर लेते हैं, उसमें तो हम अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं। उनको क्या हो रहा है वो तो उनको फायदा होता है कि नुकसान, वो हम समझ भी नहीं रहे। लेकिन ये मौका है, अगर किसी का गरम आंसू निकल गया, तेरी इज्जत की कसम, ये तुझसे शिकायत है, ये तुझसे फरियाद है। ए वो साथ जिसके कब्जे कुदरत में जालिम का दिल है, ए वो अल्लाह जिसके कब्जे कुदरत में निर्दोष को जेल की सलाखों में बंद करना है। क्या तू हमारा रब नहीं है? क्या तू हमारा अल्लाह नहीं है? अगर तू भी छोड़ देगा तो हम कहां चले जाए? अपने मखलूक से शिकायत नहीं की है, आज जुमा है, आज तुझे लेने आए हैं। अल्लाह तो हमारा रफीक बन जाएगी तो हमारा, लेकिन तो हमारी मदद फरमा दे, जल्द अज जल्द रहाई की शक्लें पैदा फरमा दे। मेरे परवरदिगार, यहाँ अमन सलामती को आपने हमेशा से बाकी रखा है, सुबह कयामत तक पूरी कायनात में अमन सलामती की लहरें चला दे। एक एक फर्द उम्मत की जान माल इज्जत आबरू ईमान अमल की हिफाजत फरमा दे। गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम की खूबियों से मुतासिर होकर अल्लाह हिदायत अता फरमा कर इस्लाम के जुमरे में दाखिल फरमा ले। अल्लाह मांगी हुई दुआएं अपने फضل से हाजिरीन की आमीन के सदके में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम।